ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुन प्रणाम सब संत। करत मंगलाचरण यह नासत विघ्न अनंत। सोरठ महला पंजवा। हम संतन की रहन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा कहना। हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखिया पाई। एह मन तेरा पाई रहा, संतन स्यों मेरे लेवा दे। संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया। और भगत भरे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी। तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करोगे। जो फाट्यो सगलों लिखो, धर्म राय अब कहाँ करेगो। जो फाट्यो सगलों लिखो, महा आनंद भय सुख पाया। संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मान्या। रंग रते विस्मदे, कहो नानक हर स्यों मन मान्या। रंग रते विस्मदे। गुरु की प्यारी साजी नवाजी साध संगत जी, आप सारे हर रोज की तरह दोपहर की क्लास निर्मल पंथ की गौरव गाथा, महापुरखों के पावन पवित्र जीवन पर उपकार, उन्होंने कीती हुई मुशक्कत, हर रोज़ उन्होंने आप याद करते हाँ, पढ़ते हाँ, सरवण करते हाँ। आओ अज भी नेम अनुसार आप सारे प्यार सह सरवण करो। सारी संगत प्यार नाल जिन्नी भी लाइव जुड़ी है इत्थे बैठे हैं, आओ सिमरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश लैके निर्मले महात्मा महापुरखों ने जो संसार अंदर परोपकार किए ने, उन्होंने हर रोज़ असी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ। साढ़े दिल विच ऐसे महात्मा महापुरखों प्रति भावना बनती है कि जिन्होंने सर्व सांझीवालता दे ये महान प्रचार दुनिया भर विच कीते और लखां संगतां नूं उस सत नाल, उस तत् नाल, उस ज्ञान नाल जोड़िया
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤ ਤਤ ਅਦਵੈਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਵੈਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 4 ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਥੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਮਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਮਤ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਮ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਏਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਲ ਪੰਥ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਔਰ ਆਤਮ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਮਤ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੈ ਜੀ, ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਰਮਤ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮੁਖੀਏ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਸ਼ਰਦਾਈ ਚਾਂਦਨੀ ਲਗਾਉਣ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਦਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਸਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਾਰੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਣ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇਮ ਕਿ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੇ ਬਸ ਰੱਬ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4, ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਮੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਆਪੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੰਬਰ 5, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਮ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਰੀ ਗਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ। ਨੰਬਰ 5 ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਪਨਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਔਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਉੱਠੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਤੁਰਮਾਸਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਰਮਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਪੂਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਨਖਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 1864 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਰਸ਼ ਭਰਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ 1890 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਬੇਰੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਸੰਮਤ 1924 ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਕੁੰਭ ਆਇਆ। ਸਜ ਧਜ ਨਾਲ ਛਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਮਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ, ਤਮੋਟੀਆਂ, ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੁਕੜੀ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਛਾਏਵਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੈਂਡ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦਾ
निर्मल अखाड़े की हर शाही विच रियासती बैंड अगे होया करदा। कुंभ की आरंभता तो लैके समाप्ति तक रात समय चौफेरे फौजी पहरा होया करदा सी। यह नियम निर्मल अखाड़े की स्थापना 1862 तो लैके 1928 तक कायम रही। सत कत्तक संमत 1926 ਨੂੰ महाराजा वजीर सिंह वालीए फरीदकोट ने पिंड चंबेली दे 500 रुपये की मुआफ़ी का पटा अखाड़े के नाम लेके श्री मान जी महाराज को भेंट किया। इवें राजियां महाराजियां वालों ये रियासत अपना सेवावां जुड़दियां गईयां। एक गल याद रहे कि श्रीमान साहब महापुरुषों ने किसी को ये नहीं प्रेरणा दी, परंतु उन्होंने पता लग गया कि धर्म प्रचार वास्ते सेवा है तो फर्ज बनता है कि बिना कहण तो संगतां अपने आप इस सेवावां करन। सो राजिया महाराजिया ने इसकी शुरुआत की थी। संमत 1926 विच प्रयागराज का कुंभ आया तो श्री मान जी महाराज ने कुंभ वास्ते अखाड़े विचों प्रबंधक नियुक्त किए गए भेजे। रम्मत अखाड़ा भी संगरूर चतुर्मासा कट के कुंभ ते पुज्या। कुंभ उत्साह नाल मनाया अते 12,000 रुपये उस टाइम ते खर्च किए गए। संमत 1927 विच कुरुक्षेत्र समेत सूरज ग्रहण का मेला मनाया गया, क्योंकि नेम रखिया सी कि सारे समागम प्रोग्राम किए जाएंगे। आप जी पहले सुन आए हो। इथों रम्मत अखाड़ा चतुर्मासे वास्ते नाभे नूं चला गया अते श्री मान जी महाराज हरिद्वार पहुँच गए। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा पक्के पैरों ते बज गया अते खट दर्शन साधु समाज विच भी अखाड़े का सिक्का बैठ गया। पूरे निर्मल भेख दे संत महंत अखाड़े दे कारकुन निमरता ते विश्वास नाल अखाड़े की सफलता वास्ते सेवा करना अपना लक्ष्य समझते सन। श्री मान जी महाराज का सत्कार पै हिरदे विच रख के सेवा करते सन। श्री मान जी महाराज निमरता प्रेम नाल अजिहा उपदेश देंदे सन जिस नाल निर्मल भेख श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा रम्मत अते कारकुन उच्चे जीवन वाले आदर्शक परोपकारी बनन। निर्मले संत दे आचरण अगे सब दे सीस झुक जान। जीवन वाले आदर्शक परोपकारी बनन। अजय उच्चे नियम थाप के श्री मान जी महाराज ने अपनी देख रेख अंदर गुरमुख गाड़ी राह चला दिता। 51 साल की आयु तक 17 साल श्री मान जी की पावन पदवी उपर विभूषित होके भेख दी अणथक सेवा करते हुए ये पहले श्रीमान संत बाबा महताब सिंह जी महापुरखों के परोपकार जीवन की घटना आप सुन रहे हो। 51 वर्ष की आयु तक 17 साल श्री मान की पावन पदवी उपर विभूषित होके भेख की अणथक सेवा करते हुए विसाख संक्रांत 1871 ईस्वी नूं कनखल हरिद्वार विखे ब्रह्मलीन हो गए। आप जी की सतारी ते सारा भेख इकट्ठा होया। अखाड़े के केंद्री स्थान कनखल विखे अखंड पाठ का भोग पिया। खड़ दर्शन साधु समाज विचों वड्डे वड्डे मंडलेश्वर पुजे ते 12,000 रुपये सतारीए ते खर्च किए। मतलब कि सारा हिसाब किताब तां लिखिया है कि कोई भी पैसा
अखाड़े विचों कोई भी सैकटरी प्रबंधक अगे पिछे नहीं कर सकता। ये इस वास्ते लिखिया। वैसे तो सब कुछ हिसाबों किताबों बाहर आ, पर फिर भी जिथे पैसे की गल आवे, साध संगत माया करके गंगू वर्गियां दे दिमाग खराब हो गए सन। इस वास्ते महापुरुषों ने ये सारा पाई पाई संगत की सेवा महापुरखों की सेवा विच लगे, ना कि इसनूं कोई अपनी जद्दी प्रॉपर्टी मने। इसलिए दस्या गया कि उस टाइम ते इन्ना पैसा महापुरखों की इस तारीए ते लग्या। इस समय ही श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के श्री महंत 108 पंडित राम सिंह जी कबेरिए चुने गए। श्रीमान बाबा महताब सिंह जी 1855 ईस्वी तो 1871 ईस्वी तक 17 साल श्री महंत की पदवी ते रहे। कुल उन्होंने आयु जड़ी सी 51 साल की सी। आयु तो बहुत छोटी सी। खैर उन्होंने विद्या भी बहुत ग्रहण की थी और उन्होंने सेवा भी बाखूबी की थी, जिथों के अखाड़े का मुड़ बजिया। सो दूसरे श्री महंत पंडित राम सिंह जी कबेरिए, जिन्हां दा जीवन वृतांत परोपकार आप जी सरवण करो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आप श्रीमान 108 ब्रह्म ज्ञानी बाबा महताब सिंह जी की तरह नाम दे अभ्यासी, गुरबाणी दे नितनेमी, जितेंद्रिय सतपुरख सन। रिद्धि सिद्धि दे स्वामी सन, मतलब बड़े बंदगी वाले सन। रिद्धियां सिद्धियां इन्हां दियां चरण दियां दासियां सन। महान विद्वान, महान परोपकारी सन, स्वैमानी, आत्मविश्वासी सन। आप जी का समा कठन ते प्रीख्या का समा सी। आप जी ने अपने समय में जो दृढ़ता विखाई वो उल्लेखनीय है। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस्तां कै जाका सतगुर पूरा। गुरबाणी के इस पावन कथन अनुसार अनेक तरह दियां संप्रदावां नाल, राजियां महाराजियां नाल सिद्धांतक संघर्ष करते रहे। लोभ विच नहीं आए, किसी की पदवी के प्रभाव विच नहीं आए। अपने विचारां ते नियमां उपर पूर्ण पहरा देंदे रहे। आप जी का जन्म धार्मिक जट सिख परिवार विच पिंड चीमे, जिला संगरूर, साबक रियासत पटियाला विच सम्मत 1872 बिक्रमी 1815 ईस्वी नूं होया। बचपना पिंड विच लंघिया। 1815 समझो कम से कम 200 साल के लागे की गल है। 15 वर्ष तक पिंड विच गुरमुखी विद्या पढ़ी, गुरबाणी का अध्ययन किया। हर समय पिंड के डेरे संतां कोल रह के सिमरन करते रहंदे अते नवें तो नवां ग्रंथ पढ़ते रहंदे। ये साडा जीवन होना चाहिए कि जदों वेला टाइम होवे कोई ना कोई ग्रंथ लैके पढ़ो, ना कि 4 जने इकट्ठे होके गप्पा मारो। जे जीवन नूं बनाउणा है तो, या फिर सारा दिन गुरबाणी सुनते रहो। सो ये पुरातन जिन्ने भी आप जी महापुरुष सुनोगे उन्होंने जीवन सन। महापुरखों के दर्शन, सेवा, सिमरन, सत्संग की तां लगन लग ही गई सी। इसलिए यात्रा करके महापुरखों के दर्शन करने का संकल्प भी बनया रहिंदा सी। इन्हां दिनां विच सूरज ग्रहण ते कुरुक्षेत्र का मेला आ गया। आप कुछ प्रेमियों नाल कुरुक्षेत्र पहुँच गए। उदासियां, सन्यासियां, बैरागियां ते अनेक साधुआं दियां मंडलियां
अन्य साधुओं के दर्शन करते हुए श्रीमान संत मान सिंह जी कबीर वालियां दे दर्शन करके सत्संग सरवण करके उन्हां दे चरनां विच अपने आप नूं समर्पण कर दिता। महापुरखां ने अधिकारी जान के शिष्य बना लिया। 5 वर्ष सेवा विच रहे। मजा तो यही हुंदा साध संगत जद एक बार असीं शिष्य बन जाते हाँ, गुरु उपदेश धारण करते हाँ, नाल नाल साडी आत्मक उन्नति, नाल नाल सेवा ते नाल नाल त्याग बिरती रखदियां होयां सारा कुछ ही प्राप्त हो जाता है। देखो किवें किवें महापुरखां दीयां जीवनियां प्रारंभ होईयां ते किड्डे किड्डे उच्च अहुदियां ते बैठे जिथे लखां लोग उन्हां नूं सिजदा सलामा करते हैं। 5 वर्ष सेवा विच रहे महापुरखां दी। संत मान सिंह जी ने होनहार जान के संस्कृत पढ़न वास्ते कांशी भेज दिता। 18 वर्ष कांची जी विच विद्या अध्ययन की। कितना लंबा समा, 18 साल विद्या पढ़े। साध संगत अज जेड़े कोई वकील ने, जज ने, कोई तहसीलदार ने, RTO है, DTO है, कोई DC है, कम से कम लम्मी विद्या दे विच दी लंघ के फिर वो कुर्सी ते पदवी मिलती है। कमाल दी गल है कि ये लोग इन्नियां पदवियां पा के अनेकां पैसा खर्च के एक कुर्सियां मिलदियां ने ते फिर कई तरह दियां रिश्वतां नाल ये पूर्ति करते हैं। महापुरुषां दे जीवन इन्ने इन्ने साल कठिन तप विद्या दा मैनूं दसदे हुंदे सी स्वामी गंगदेव जी महापुरुष जिन्हां दे पास मैं संस्कृत विद्या पढ़ी कि असी बनारस दे विच उन्हां दे दर्शन करा दिओ स्वामी गंगदेव जी दे। उन्होंने जदों बनारस विच विद्या पढ़ी, सत्कारयोग साध संगत भिक्षा करके भोजन छकना वो दसदे हुंदे सन कि कई बार सानू पानी वर्गी दाल मिलती सी जिहदे विच दाना किते दिसदा ही नहीं सी। रोटियां 2-4 चूर के उहदे विच छक लैणियां, सारा दिन ग्रंथ लैके विद्या पढ़ते रहना। आखो सतनाम। आपां नूं खाण लई किन्ना किन्ना चंगा कुछ मिलदा रहे, पर फिर भी कई बार इन्ना शौक नहीं पैदा हुंदा। पर उन्हां दीयां कमाईयां देखो। मैं जो वचन कहण जा रहा कि जदों एडे वड्डे वड्डे प्राकांड विद्वान बन जाते ने, पंडित बन जाते ने, सादे कपड़े, सिंपल चोले, सिंपल पहरावे, चरना च पऊए, साध संगत पढ़ लिख के कोई वकील बन गया, जज बन गया, DC बन गया, साध संगत किसी नूं अख थले नहीं लियाउंदा। इन्नियां इन्नियां विद्या पढ़ के इन्ने निमरतावान हो के सादे वस्त्र पहन के संगत दे विच विचरदे आओ कि जिवें आप क्यारियां गुड लैणियां, आप सफाइयां कर लैणियां। असीं महापुरखां नूं देखदे ने रात नूं 1-1 वजे आप बाथरूम टॉयलेटां साफ करते हुंदे सन। एडी वड्डी उन्हां दी घालना ते कमाई, साडा सिर झुकदा है जिन्हां दे पास असीं पढ़दे रहे। सो साध संगत इन्नी इन्नी अंदर सेवा ते निमरता। सो मेरे कहण तो भाव कि इन्नियां घालना घाल के देख रहे हो ना भी 18 साल बनारस विच महापुरुष पढ़े, इन्नी विद्या पढ़े, इन्ना जप तप, इन्ना त्याग, ते उन्हां नूं हरिद्वार दे दूसरे श्रीमंत साहिब थापिया। पर जिन्हां ने इन्नियां कमाइयां कीतियां ना, वो श्रीमंती दी गद्दी ते बैठ के भी साध संगत उन्होंने संगत दियां जो सेवावां कीतियां वो आप जी अगे सरवण करो।
प्राकांड पंडित बन के गुरुदेव के चरणों में पुज गए। विद्या पढ़ के फिर महापुरुषों के पास आए, नहीं भी मैं विद्वान बन गया तो हुण मैं जिथे मर्जी कथा करके चार छिलड़ इकट्ठे करांगा ते बस अपनी मौज मस्ती करांगा। साध संगत महापुरुषों के पास आए, उन्हों की आग्ञा लैके गए, उन्हों की आग्ञा का पालन करके वापस आके महापुरुषों के पास श्रीमान संत बाबा मान सिंह जी महापुरख बड़े प्रसन्न हुए। विद्या सेवा सिमरन निमरता वेख के अपने स्थान दे महंत बना दिते गए जिथे वो महापुरुष रहते सन कबीरिए वाले। आप जी को अनेक विद्यार्थी पढ़ लई आउण लगे। विद्या की टकसाल प्रसिद्ध हो गई। आप जी की विशेषता यह सी कि केवल संस्कृत के विद्यार्थी ही नहीं सगों गुरबाणी अते भाषा के विद्यार्थी भी विद्या प्राप्त करते सन। एक हुंदा है कि असीं विद्या पढ़ के कीर्तन सीख के कला माया कमा लैनी ते अपना जीवन निर्वाह कर लेना। एक है कि जे जगियासुआं नूं विद्यार्थियों नूं विद्या देनी, कीर्तन सिखाउणा, बाणी पढ़ाउणी, साध संगत जो ये पौधे तैयार करने, पनीरी तैयार करनी, जिन्हां ने अगे धर्म का प्रचार करना, रोटियां ते दो ही खाणियां, साध संगत सब तो वड्डा आनंद ते सब तो वड्डा सुख है। भेख विच भी पूर्ण सत्कार सी। अखाड़े दे कम्मां विच श्रीमान जी महाराज नूं भी पूर्ण सहयोग दिंदे सन, बल्कि अखाड़े नूं बनाउण विच आप जी दा उल्लेखनीय योगदान सी। अखाड़े दे बजण समय इकत्तरतावां करन, लिखा पढ़ी, विचार विमर्श करन विच आप जी दा मुख्य हिस्सा सी। ये श्रीमंत बनने तो पहले दियां गल्लां ने। इस तरह अखाड़े दे सत्कार गौरव नूं वधाउण विच आप जी दी दीर्घ लगन सी। भेख विच आप जी दा परम सन्मान सी। आप जिन्ने भी बैठे हुए इत्थे जां घरां विच सरोते जां किते भी सुन रहे हो, सानू अपने घरां दा, अपने स्थानां दा इवें नेम निभाउणा चाहीदा है जिहदे नाल सात्विकता बनी रहिंदी है। अस्थानां ते रखांगे तो अस्थानां ते बनी रहेगी, ते नहीं तो एक बंदा कोई गलत होवे अस्थान ते, कदे इधर उंगल दे कदे उधर उंगल दे, अपना तो उन्हें सत्यानाश करना ही है, बाकी कईयां दा बेड़ा वो पा दिंदा है। ये अस्थानां गुरुद्वारियां च ऐसे चुगलखोर लोग बहुत होंदे, परंतु अपना जीवन वो बर्बाद करते हैं। ना उन्हां दा अपना सुख ते ना वो किसी एवें घरां विच घरां दे घर बर्बाद हो जाते हैं। साध संगत मैं कह रहा कि ये महापुरखों दी जीवन शैलियां साडे स्थानां ते और साडे घरां विच भी लागू होण तां साडे स्वर्ग बन जाए। सो भेख विच आप जी दा परम सन्मान सी। जद पहले श्रीमान जी ब्रह्मलीन हो गए, आप जी की सेवा सिमरन वाली बिरती, विद्वता, निमरता, कोमलता, परोपकार सुभाव आदिक महान गुणों के कारण पहले श्रीमान जी महाराज की 17वीं वाले दिन 17 विसाख संमत 1928 1871 ईस्वी नूं आप जी नूं श्रीमान चुनिया गया। जिवें कि इस वेले सत्कारयोग श्रीमान संत ज्ञानदेव सिंह जी आप जी गाए बगाए समागमां ते उन्हां दे दर्शन करते हो। जदों कुटिया ते आउंदे ने, असीं 3 साल इकट्ठे पढ़ते रहे हाँ श्रीमंत साहब जी दे नाल। सो कहण तो मुराद है कि ये बड़ी एक उच्च पदवी उच्ची है। मतलब मकसद है कि धर्म प्रचार प्रसारण करना। और आप जी दे समय दियां 2 घटनावां प्रसिद्ध हैं। त्रियंबकेश्वर महादेव दे मंदिर दे पंडियां वालों निर्मल अखाड़े नूं पूजा करन तो रोकण दे कारण निर्मले विद्वानां वालों शास्त्रार्थ विच पंडियां नूं हरा के अलौकिक विजय प्राप्त करना। मतलब कि हरिद्वार दे विच बड़े बड़े आस पास अखाड़ियां वाले विद्वान सन। उन्हें कहे जिहड़े सिखड़े ने
इन्हां नूं की पता, परंतु ये नहीं पता कि कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी के थापे हुए कल्ले विद्वान ही नहीं, ये सूरबीर भी ने। दूसरी घटना सचखंड श्री हजूर साहब की, जो इस तरह है। आप जी नूं श्रीमंत चुनन समय रमत निर्मल अखाड़ा माझे मालवे विच प्रचार करदा होया चेतर महीने दे आरंभ विच सखर पुज्या। इत्थों शिकारपुर, लड़काना, हैदराबाद आदि शहरां विच गुरमत दा प्रचार करदा होया बंबई पुज गया। बंबई की पढ़ी लिखी जनता विच प्रभावशाली विज्ञानक ढंग नाल गुरमत की व्याख्या करने वास्ते श्रीमंत जी महाराज ने संस्कृत के गुरमत के महान विद्वान श्रीमान पंडित दीवान सिंह जी ठीकरी वाले और श्रीमान पंडित ईश्वर सिंह जी कलयुग, ये तखलस से उन्होंने कलयुग आदिक विद्वानों नूं भेजिया। इन्हां महान विद्वानां दे विख्यान सुन के शहर के प्रेमी बड़े प्रसन्न होए। शहर विच रमत अखाड़े का यश ते सत्कार फैलिया। साध संगत कला कोई छोटे पिंडां दे विच ही नहीं, शहरां दे विच हैदराबाद, दिल्ली, बंबई आदिक निर्मले महात्मा ने अज तो 200 साल 250 साल पहले प्रचार प्रसारण गुरबाणी ते गुरमत दा कीता। घर घर भंडारे ते पूजा होंदी। इस तरह अखाड़ा प्रचार करदा होया 1872 ईस्वी दे त्रियंबक नासिक कुंभ ते पुज गया। श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना नूं क्योंकि थोड़ा समा होया सी, इस वास्ते इस कुंभ ते अखाड़ा पहली बार आया सी। अखाड़े ने ध्वजा खड़ी करके, ध्वजा मतलब कि निशान साहब, ध्वजा खड़ी करके छावनी ला दी। कथा कीर्तन धर्म प्रचार लंगर आरंभ किया गया और शानदार शाही शोभा यात्रा कढ़ी गई। पर जदों अखाड़ा त्रियंबक महादेव के मंदिर विच पूजा करन गया तो पुजारी पांडिया ने यह कह के रोक दिता कि यह अखाड़ा पहले कदे नहीं आया, क्योंकि साध संगत दुनिया अंदर इको एक गुरु नानक दा सिख है, जिहदे केस ते जिहदा सोहना दाड़ा दसदा है गुरु नानक दे घर दा पांदी है। नहीं तो बाकी कोई मुछां कट दे, कोई दाढ़ी कट दे, कोई चोटी रख दे, कोई टिंड कढ़ाउंदे, कोई कुछ करदे आपो अपना, परंतु एक गुरु नानक दे घर दा सिख है जिहदी वखरी पहचान है। ये गल वखरी है कि अज सिखां दे पुत्तां ने अपनियां शक्लां विगाड़ लईआं ने, वखरे तरह के बोधे बनाने शुरू कर लए ने। पर साध संगत सिख दा पुत और गुरु नानक दे घर दा पांदी साबत सूरत वखरा पता लगता है। पर उस कुंभ ते जदों ना देखिया भी ये कौन ने दस्तारां बन्नियां ते केस ते दाड़े इन्हां दे एडे एडे लम्मे, ये पहले कदे नहीं वेखे। इस अखाड़े दे साधु पढ़े हुए नहीं हैं, इन्हां नूं पूजा करन दा अधिकार नहीं है। निर्मले संत पूजा करन वास्ते यतन करन लगे, दोनों पासियां तो वाद विवाद आरंभ हो गया। अंत सरकार नूं दखल देना पिया। इस समय पुजे सारे अखाड़े पुजारी पांडिया दक्षिणी भारत के धुरंधर विद्वान ब्राह्मणा सरकारी अधिकारियों के सामुख पंडित दीवान सिंह जी। साध संगत सोचण वालियां गल्लां ने। अज भी जे साडे विच विद्वान महात्मा जां गुरसिख ना होण ते अज फिर तुहानूं पता भी RSS आकाश वेल वांगू चढ़ी आउंदी अपने उपर। मैं लाइव कह रहा, मैनूं किसी गल का खौफ नहीं है। जे साडे अंदर विद्वता नहीं होएगी, मैं हमेशा बेनती करदा कि हरेक गुरसिख माई भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संथ्या लो, उस तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थों का बोध लो,
उस तो बाद में सत्कारयोग साध संगत कमाई करो। सानू गुर इतिहास भाई गुरदास दियां वारां, भाई नंद लाल जी दियां गज़लां, दसम ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का अपने जीवन में अध्ययन करना, समझना, ताकि कोई अनमत वाला श्री गुरु नानक देव कलगीधर सच्चे पातशाह ते उंगल ना कर सके। सो इन्हां पांडियां ने जदों अपना जोर अजमारिया तो सत्कारयोग महापुरख साध संगत विद्या काम देती है। फिर उत्थे हाँ जी कई जगह ते किरपान ते ढालां ते नेजे काम देंदे ने ना, जदों जंग करना होवे तो जिथे शब्दी जंग होवे साध संगत उत्थे फिर शब्दां नाल वर्ताव करना पैंदा। अति विद्वान कलगीधर सच्चे पातशाह दियां सीसां पाईयां होईयां निर्मले महापुरख सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा दीवान सिंह जी ठीकरी वालियां ने 1.5 घंटा संस्कृत विच विख्यान दे के शास्त्रां अनुसार सिद्ध किया कि निर्मले भेख दे अखाड़े नूं त्रिअंबक दी पूजा करन दा पूर्ण अधिकार है। इन्हां लोकां ने तो तीर्थां ते कब्जे कीते हुए सी, जिस नूं पंडियां ते सरकार ने नतमस्तक हो के प्रवान किया। इस समय सरकार अते पुजारियों वालों लिखती रूप विच निर्मल अखाड़े नूं विशेष अधिकार दिता गया। साध संगत नहीं तो ऐसे विद्वान लोग जदों किसी तरह की चर्चा करते हैं, जो साडे कोल विद्या ना होवे तो फिर असी हार जावांगे। इस पक्ष तो साडे गुरु की हेठी हुंदी है, इसलिए साडे पास विद्या भी जरूरी होनी चाहिए है। विद्वान साडी धरोहर ने, साडे निशान ने, साडा भविख ने, फ्यूचर ने। निर्मल भेख दे संत खद्दर रेशम आदि सब तरह के सीते कपड़ियां कछहरियां समेत सहित त्रिअंबक महादेव की पूजा करने का विशेष अधिकार रखते हैं। जदों के पुरातन समय तो खट दर्शन साधु समाज ब्राह्मण वर्ग अणसीते रेशम या उन्नी वस्त्र पहन के ही जा सकते हैं, उन्हां दा नेम है। निर्मल अखाड़े का त्रिअंबक विच सिक्का बैठ गया। अन्न भेखां दे साधु सरकारी अधिकारी ब्राह्मण सब सुबह शाम निर्मल अखाड़े की छावनी विच आके प्रवचन सरवण करन लगे। पंडित दीवान सिंह जी की कथा, पंडित ईशर सिंह जी महापुरखों के प्रवचन सुन सुन के दक्षिणी भारत आनंद विभोर हो गया। इस तरह 1 महीना प्रचार होया। इस कुंभ पर्व ते श्री हजूर साहब तो दक्षिणी सिखां की बहुत सारी संगत भाई राम सिंह जी पुजारी नाल इशनान करन वास्ते आई। ये प्रेमी निर्मल छावनी में आके ठहरे सन। गुरबाणी की कथा कीर्तन लंगर वेख सुन के प्रसन्न हो रहे सन। त्रिअंबक के मंदिर विच होई विजय के कारण तो बहुत ही प्रभाव पिया। तुरन समय भाई राम सिंह जी पुजारी ने बेनती की, सचखंड अबचल नगर हजूर साहब भी आप जी दर्शन बख्शो। रम्मत अखाड़े के महंत गंगा राम सिंह जी कांशी वालिया ने उत्तर विच फरमाया, इथों अखाड़ा हैदराबाद की यात्रा करेगा। जेकर सतगुरु नानक देव जी की कृपा हुई तो सचखंड के दर्शन भी असी करांगे। त्रिअंबक नासक तो 1972 ईस्वी नूं रम्मत अखाड़ा औरंगाबाद विच हैदराबाद चला गया, जो फग्गण सुदी 5 नूं पुज्या। साध संगत उस टाइम ते ज़्यादातर पैदल यात्रा, गड्डियां दियां, रथां दियां, घोड़ियां दियां, ऊठां दियां यात्रा सन। दास ने भी 1983 तो 1986 तक हिंदुस्तान की
पैदल यात्रा विद्या पढ़द्या की। बड़ा वखरा ते आनंद वाला जीवन से। इत्थे सत्संग जारी हो गया। फौजी सिख बहुत संख्या विच कथा वार्ता सरवण करते और उत्थे पुजदे। सत्संग जिथे जिथे भी रमत जाती उत्थे उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश हुंदा ते गुरु नानक दे घर दे सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां च नतमस्तक हुंदे ते महापुरखां दे अनुभवी वचन सरवण करते। अज जो कि तुसी देखो तख्तां दे उत्ते निर्मले संत महात्मा महापुरख बहुत घट छेती कमेटियां टाइम नहीं देंदियां, नहीं तो किते विद्वान है नहीं गे। बड़े बड़े वड्डे निर्मले महापुरुषों च विद्वान ने जो संगतां नूं गुरु नानक दे घर दे ज्ञान की रोशनी पा सकते हैं। सचखंड के प्रबंधक भाई मान सिंह जी हजूर साहब पुजण का आप निमंत्रण दे आए। अखरी 301 रुपये 2 आने 2 पैसे अरदास कराए। इस समय दक्षिणी सिखां विच 2 धड़े सन। एक धड़ा जो सोचदा सी, दूसरा उसदे विपरीत करदा सी। ये साध संगत शुरू तो चली आई है। एक धड़ा कहंदा सी निर्मले पंजां काकियां दी रहत नहीं रखदे, भगवे वस्त्र पाउंदे हन, खुले रहिंदे हन। ਉਹ तक सचखंड आके पहले डंड प्रवान करन, तनख्वाह लगाउण, अरदासा सुधा के पंजां कक्कियां दी रहत रखण दा प्रण करन तां ਉਹ सचखंड हजूर साहब आ सकते हैं। दूजे धड़े वाले सिंह कहंदे सन निर्मले संत महान विद्वान ते गुरु घर दे धर्म प्रचारक हन। उन्होंने बिगड़े रस्ते पार करके सिक्खी का प्रचार भारत के कोने कोने विच कीता। सैकड़े ग्रंथ लिखे हैं। भगवें कपड़े रखने उन्हां दी मर्यादा का हिस्सा है। कोई माड़े नहीं हैं। आयां दा स्वागत सत्कार होना चाहिए। संतां नूं डंड थोड़ा देना। हजूर साहब दे दक्षिणी सिखां दा एक धड़ा दूसरे धड़े नूं सहमत ना कर सकिया। ये तो इउं लगदा है कि जिवें गुरद्वारियां दे विच जदों अन्न पानी लोग खांदे ने ना पूजा का, ते कारण है कि भजन बंदगी ना करन दे कारण अंदर धरे बनते हैं, दुबदा बनदियां ने, दुबदा खड़ियां होंदियां ने। तां करके ऐसे शंके ते गिले कीते जाते हैं जो अज भी हैं। अखाड़े नाल 6 महीने तक चिट्ठी पत्र चलता रहा। अंत अखाड़ा हैदराबाद तो अस्सूवदी 3 संमत 1930 1873 ईस्वी नूं बुरहानपुर तो चला गया। अनेक पिंडां शहरां विच दी गुरमत दा प्रचार करता होया विसाख वदी 7 संमत 1874 ईस्वी नूं बुरहानपुर पुज गया। बाबा हठी सिंह दे गुरुद्वारे दे दर्शन किए। गुरुद्वारे दे ग्रंथी भाई हीरा सिंह जी ने प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया अते अखाड़े की रहायश का यथायोग प्रबंध किया। जदों सचखंड हजूर साहब आम जनता नूं पता लगा कि निर्मल पंचायती अखाड़ा सिखां दी धड़ेबंदी के कारण हजूर साहब की यात्रा नहीं कर सकिया, तो आम सिख अफसोस करन लगे कि सिखां दी पढ़ी लिखी विद्वान संप्रदाय नूं दर्शन नहीं करन दिते। एक शोक दे दुख वाली गल है। गुरु घर विच 4 वर्णां नूं यात्रा ते दर्शन करन दा अधिकार है, पर यह बहुत वड्डी अवज्ञा की गई है। यह गल आम शहर नदेड़ हजूर साहब विच फैल गई कि निर्मले संतां ते शहर विच आउण तो पहलां बहुत सारे प्रतिबंध लगाउणे आरंभ दिते जो हर तरह अयोग गल है। इस तरह सचखंड दीयां सारियां सिख संस्थावां चर्चा करके सचखंड दे पुजारियां प्रति दुख प्रगट कर रही सन।
शहर विच पुजारियां ने गलत प्रभाव पैदा वेख के आपसी विचार करके सचखंड विखे बैठ के हुक्मनामा लिखिया। मोहर ला के हुक्मनामा लैके भाई मान सिंह जी पुजारी, भाई बिशन सिंह जी, भाई ध्यान सिंह जी, भाई सेवा सिंह जी आदिक 5 सिख बुरहानपुर जाके अखाड़े नूं मिले। परस्पर प्रेम नाल वचन विलास करते रहे। फिर अखाड़े दे मुखिए महंत संत गंगा राम सिंह जी नूं हुक्मनामा दिता। उन्होंने सचखंड की मोहर लगी वेख के परम सत्कार नाल सिर रख के नमस्कार की। किन्ना सत्कार साधुआं दे अंदर गुरु घर का। अज बेसमझ लोग ने जिहड़े ऐसे महात्मा दे विरुद्ध बोलते हैं। एक साध संगत पत्र का है, सिर्फ हजूर साहब की मोहर लगी हुई है। महापुरखा ने सिर मत्थे ते रख के नमस्कार की। उस चिट्ठी नूं आखो सतनाम। हुक्मनामा आउण करके अखाड़े ने सचखंड हजूर साहब जाण दा निर्णय कर लिया। 4 महीने 15 दिन बुरहानपुर रह के भाद्रों सुदी 1 संमत 1874 ईस्वी नूं अखाड़ा हजूर साहब नूं वापस मुड़ गया। इत्थों श्री हजूर साहब जी 150 को दूर। अखाड़े का आगमन सुन के दरबार सचखंड ते शहर दे पतवंते स्वागत वास्ते पुजे। दक्षिणी सिख भी सारे स्वागत विच शामिल हुए। स्वागत करके अखाड़े की दर्शनी पूजा करके अरदास कराई। प्रेम अते सत्कार नाल रैकलियां दी शल्क, नगारियां दी कणकोर अते रणसिंगियां दी ध्वनि विच गोदावरी दे किनारे नगीना घाट विखे अखाड़े का उतारा किया गया। अखाड़े का स्वागत सिखां का परस्पर प्रेम वेख के सब लोग प्रसन्न हुए। इस समय हेठ लिखे महापुरखों के नाम वर्णन योग हैं जो रमत विच शामिल सन। महंत करम सिंह जी, महंत खियाण सिंह जी, महंत निहाल सिंह जी, महंत लद्दा सिंह जी, महंत वरियाम सिंह जी मराड़ा वाले, महंत ज्वाला सिंह जी लिदड़ा वाले, महंत दूला सिंह जी, मराड़ा च कोई होए दान से जिमें ये मराड़ आया नाम। वरियाम सिंह कोई पुराने संत कोई या मराड़ कोई और होए। महंत दूला सिंह जी, महंत गुलाब सिंह जी, महंत गंगा सिंह जी, संत गुलाब सिंह जी, संत हरदित सिंह जी, संत गुरमुख सिंह जी, संत कोयर सिंह जी, संत खजान सिंह जी, संत सुरजन सिंह जी, संत राय सिंह जी, संत दसौंदा सिंह जी, संत जैमल सिंह जी, संत किशन सिंह जी, संत अद्वैत सिंह जी, संत सुहावा सिंह जी, संत दरबारा सिंह जी, संत जंग सिंह जी, संत हरा सिंह जी। पुरातन नाम साध संगत किन्ने सुंदर ने। संत अचल सिंह जी, संत शिव सिंह जी, संत कपूर सिंह जी, संत गोपाल सिंह जी, संत हंबीर सिंह जी, संत हेम सिंह जी, संत गुरमुख सिंह जी लौंगोवालिए, संत खजान सिंह जी, संत गुरमुख सिंह जी फतेहगढ़, संत कान सिंह जी ग्रंथी, संत अतर सिंह जी कुठारी, संत अतर सिंह जी भंडारी,
संत भगवान सिंह जी, संत गुलाब सिंह जी, संत रागी संत गुरमुख सिंह जी ऊठां वाले, संत सुहावा सिंह जी अते बेणी सिंह। शाम ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच अखाड़े का दीवान सजिया। ਇਹ हजूर साहिब की वारता। रहरा साहिब का पाठ होया। शहर के चुणवे व्यक्ति अते जन सधारण जनता पुजी। आरती अरदास वेख के सब लोग अति प्रभावित होए, क्योंकि साध संगत जदों मर्यादा वेखी जाए ना, बचन होण, गुरबाणी का प्रचार होवे। कई बार साडियां ऐसे मिशन ने जिवें अखंड कीर्तन है, साध संगत गुरबाणी दे जिथे कीर्तन की महानता उत्थे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के शब्द की कथा की भी उन्नी महानता कलयुग विच। असी कही असी अखंड कीर्तनी है, सानू तो कीर्तन नाल ही प्यार है, परंतु सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा, झरे कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा। इन्हां दा की अर्थ किया जाएगा? सो कहण तो भाव है कि जदों ये सरवण किया जाता है ना, फिर पता लगता है कि गुरु नानक दे घर दे पांदे भावें साध संगत मुसलमान भी क्यों ना होण, वो भी सत्कारे योग ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते जां उस दे वचन सुणाते। अखाड़े की शाही सज तज के वेख के ईशरावादी ईरखा नाल होर दगद हो गए। जदों तखत साहिब के पुजारी अखाड़े के सचखंड दर्शन करन संबंधी कोई दिन तजवीज़ करन दा विचार करन लगे, तां विपक्षी अखाड़े तो कई तरह दीयां शर्तां मनाउण दा यतन करन लगे। मतलब जिहड़े लोग दुविधा वाले हुंदे ने, वो साध संगत अपनी जहर उगलते रहते हैं। अखाड़े के मुखिया ने भी साफ कह दिता, असी गुरु के सिख हाँ, गुरबाणी अते गुरु धामां विच पूर्ण शरधा रखते हैं, पर किसी की जिद के कारण अपनी रहनी बहनी नियम अते सिद्धांत का परित्याग नहीं करांगे। विपक्षी अणहोए दूषण आरोपण करन लगे। इस तरह ये वाद विवाद 3 महीने तक चलता रहा। आहो 3 रियासतां पटियाला नाभा जींद विच भी पता लग गया कि रम्मत निर्मल अखाड़े के दर्शन करन विच कई प्रतिबंध लाए जा रहे हैं। इस वास्ते 3 महाराजियां ने अपने प्रतिनिधि भेजे, पर वो भी कोई फैसला ना करवा सके, निराश होके वापस आ गए। अखाड़े नूं बैठिया 6 महीने हो गए। इस वास्ते अखाड़े ने भी तुरन की तैयारी आरंभ दी। शहर के कुछ पतवंते विच पै के फिर यतन करन लगे कि किसी न किसी तरह दोनों धड़े सहमत हो जान अते सिखां दा अखाड़ा दर्शन यात्रा करके प्रसन्नता नाल जावे। साध संगत समझियो आप जी कि इन्हां तख्तां ते इन्हां लोकां ने कब्जे किए हुए सन कि साडे जद्दी तख्त हैं, जिथे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, ये सारे दे सारे तख्त सब वास्ते साध संगत सांझे ने। श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन अवतार सारे संसार दे जीवां लई सांझा पैगाम लैके आया। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णा को सांझा। सबना सांझी वाल सदाइन कोई न दिसै बाहरा जियो। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। विपक्षियां ने कहा निर्मले कशहरे का विरोध ना करन तां असीं उन्हां दी यात्रा पूजा करन लई सहमत हो जावांगे। कदे हो सकता है कि निर्मले महात्मा ककारां दी विरोधता करन, कशहरियां दी कहे क्यों?
कई महात्मा महापुरख ककार पहनते ने ते कई साध संगत सहज विच रहिंदे ने, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना इष्ट गुरु मनदे। हमदर्द पतवंतियां ने रम्मत अखाड़े विच आके विरोधी धड़े दीयां शिकायतां दसियां तां रम्मत दे महंत गंगा राम सिंह जी ने निमरता नाल आखिया, असीं कशहरे दा विरोध क्यों करना है, असीं तां पंजां कक्कियां दे समर्थक हां। अमृत पान करे बिना निर्मला शांति नहीं बन सकदा। देखो साध संगत ये मतलब शुरू तो नेम चले आ रहा है। ये जरूर है कि अमृत पान किया जाता है, कई ककार रखते ने, परंतु ककारां दी बेपत्ती नहीं की जाती। अमृत पान करन समय पंजे प्यारे ते अमृत अभिलाषी पंजां कक्कियां संयुक्त तैयार हुंदे हन। देश प्रदेश विच अमृत छकण दा प्रचार करना ही निर्मल अखाड़े दा मुख उद्देश्य है। अमृत छक के संत लोग कृपान आदिक नियमां दे पाबंद नहीं रहिंदे, सुतंत्र विचरदे ने। अमृत अते पंजां कक्कियां दा सत्कार शरधा रखते हुए प्रचार करते हैं, बल्कि बहुत सारे निर्मले अजय हैं जो पंजां कक्कियां दी रहत दे धारणी हैं। वो मैं आप जी नूं दस रहा। निर्मल अखाड़े दे मुखिए महंत जी दे ये विचार सुन के सारे व्यक्ति प्रसन्न हो गए। प्रबंधक बोले, तखत सचखंड जाण दा शीघ्र फैसला हो जाएगा। जेठ सुदी 7 संमत 1875 ईस्वी विच शाम दे समय तखत सचखंड दा चौबदार भाई तारा सिंह निमरता देण आया, निमंत्रण देण आया कि कल नूं अमृत वेले 5 बजे रम्मत अखाड़े की यात्रा अरदास का समा नियत होया। सारे संत सुन के प्रसन्न हो गए। तखत सचखंड की भेटा वास्ते सारी समग्री तैयार कर ली गई। देखो साध संगत भावें उत्थों वापस भी आ जाते, परंतु महापुरख तीर्थां दा इतिहासक गुरुद्वारियां दा अति सत्कार करते ने। 6 महीने तक हजूर साहब ये जद्दोजहद चलती रही। साध संगत अज भी तो हजूर साहब संगतां जांदियां, जरूरी तो नहीं कोई अमृतधारी उत्थे मत्था टेक सकता, दूसरा सहजधारी टेक नहीं सकता। सारे यात्रा सारे गुरुद्वारियां दी करते ने। निर्मले महात्मा तो फिर अपना इष्ट गुरु मनते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। निर्मले महात्मा महापुरख तां करते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रचार। सवेरे शाम गुरबाणी का कीर्तन दीवान लगना, जिथे भी रम्मत ने जाना, जिथे अखाड़े ने जाना। सो अज भी ये रवायतां बिल्कुल पाबंद हैं, परंतु देखो महापुरुष 6 महीने तक उत्थे रहे। परंतु जदों हजूर साहब सचखंड कलगीधर पातशाह जी के दर्शन दिदारे होए, महापुरख दर्शन करके फिर उत्थों वापस चले। सो जो उत्थे दर्शन दिदारियां समय खुशियां लईयां, ये आपां कल नूं वाचांगे। आप सारी संगत ने बड़े प्यार दे नाल ये सारा इतिहास सरवण किया है। बड़ियां गल्लां ऐसियां आपां नूं इन्हां विचों मिलदियां ने साध संगत कि जिहड़ियां बड़ियां खोज भरपूर ने। निर्मले महात्मा महापुरख अमृत छकदे ने, दास ने भी अमृत छकिया है, पर यह है कि जरूरी नहीं कि ककारां दे पाबंद रहे। उहदा कारण है कि एक सहज अवस्था विच रह करके इस प्रकार नाल प्रचार गुरमत गुरबाणी दा करना। अकाल तखत साहिब तो भी हमेशा जिन्ने सिंह साहबान ने जदों साध संगत विचार विमर्श होंदी है, निर्मले महात्मा महापुरुष अकाल तखत का अनिखड़वां अंग हन। श्री गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे पुत्र हन और गुरबाणी गुरमत सिखलाई कीर्तन ग्रंथां की रचना करना
इन्हां दे जीवन का एक विरसा है। सो आप जी सरवण कर रहे सी निर्मल पंथ की गौरव गाथा। बाकी दा अगला इतिहास आप कल वाचांगे। आप जी का धन्यवाद। सारी संगत नूं जो भी कुछ प्राप्त होंदा है वो ग्रहण करो। साधु संगी होवो, नाम जपो, चंगी किरत करो, नशियां दा त्याग करो। किसी प्रकार के पखंड भरम वहम नूं ना मनो, ताकि साध संगत असी अपने जीवन विच गुरसिੱਖੀ जीवन नाल गुरु चरणों में खुशियां लईए। आओ अरदास करिए सच्चे पातशाह रहमत करन। नानक नाम तेरे भाणे सरबत दा। सारी संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी